नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। And the title is The Brush the Bushes. With thanks to everyone of you who are just demanding a particular title for the interaction and encouraging us in a several mode. So one learned viewer, in the very beginning, just after 2-3 sessions, he's demanded that, sir, there should be one session on the reasons and the causes for the worldwide acceptance and the prominency of the traditional Chinese medicine on every account of comparison or the parameter in relation to the Ayurveda, that is the Indian medicine. So I thought, yes, it is in the agenda and we will discuss. And today is the day for the traditional Chinese medicines after the completion of the status of the Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Mind it, only the status of the Ayurvedic Pharmacopoeia of India, not a comment on its merit and the demerit or whatsoever things are required, nothing like that. There may be one separate session as in the classes of the rule and regulation, not in the brush the bushes. In the brush the bushes, just we have tried to make the situation clear. But if you have to emphasize what are the contents in the API and AFI and the atlases, then we have to go to the rule the regulation series on the every Monday. And that is going on, and just one rule 153B has been covered. So friends, now here the brush the bushes. आइए स्थिति को साफ करें, क्रिस्टल क्लियर करें और देखें कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स की प्रमुखता के पीछे वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इतना प्रभावी क्यों है तुलना में आयुर्वेद के। तो इस पर हम लोग विचार करते हैं और पूरा कंटेंट को जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये एक सेशन का मैटर नहीं है, यहाँ पर कम से कम 3 सेशन चाहिए। तो ये पार्ट 1 है और इस पर हम लोग बात करते हुए पार्ट 3 तक चलेंगे। तो एक तस्वीर उभर करके आएगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि वाई वी आर लैकिंग बिहाइंड इन द ग्लोबल सिनेरियो and how TCM occupied first space in the global scenario. And it needs time, and certainly we will discuss it. So today that's the first part of this series of the Chinese medicine, which will be totally of the 3 sections. Okay, friend. So pronounced Chinese medicine, pronounced Ayurveda. What is the first thought in your mind? क्या सोचा आपने पहली बार? आयुर्वेदा, आयुर्वेद, आर्यावर्त का आयुर्वेद, चाइनीज मेडिसिन, चाइना का चाइनीज मेडिसिन, सो सिंपल। या कल्चरली लेवल पर जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने अध्ययन में यही पाया। आई इंटरप्रेटेड इन द फर्स्ट thought, what I concluded, that the reason behind the propagation of the TCM is the cultural belief of the Chinese people. Let us see how it is significant and how it is making an impact on the whole process of the global acceptance. And I think many of you have just caught a chord when I am referring the cultural belief. हमारे भारत में क्या है, हमारे इंडिया में क्या है। भारत शायद राजा भरत के नाम पर पड़ा हुआ भारत, या इंडिया जो इंडस सिविलाइजेशन के नाम पर पड़ा हुआ नाम इंडिया। किसने दिया नाम भारत, किसने दिया नाम इंडिया, इस पर इतिहासवेत्ता
अध्ययन करते हैं और उन्होंने निर्णय भी सुना रखे हैं। आर्यावर्त कैसे आया उस पर भी, और द्रविड़ कैसे शब्द है, इन शब्दों पर जाइए, लेकिन इसलिए जाइए कि ये इम्पॉर्टेंट है इस डिस्कशन में कि TCM जो है क्यों इतना आगे बढ़ गया। वैसे सारे तथ्य आपको बताने के बाद ही मुझे निष्कर्ष बताना चाहिए, लेकिन मैं एक एक करके ज़रा इनको समझने का प्रयास करता हूँ और आपको भी शामिल करता हूँ इस प्रयास में कि आप भी समझिए कि क्या कारण है कि आयुर्वेद पीछे हो गया और आज भी कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। और आज की भी तारीख में, दैट इज़ द अगस्त 2023, वी आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ स्पिरिट, thrust area, theme of the government or the public, which is making progress in the direction of the acceptability of Ayurveda at the global scenario. Yes, it is very important, friends. It is very significant. On any issue, on any matter, if that particular matter want to see the light of the day, then there are the several reasons which are making that matter to see the light of the day. And the first is perception of society, the perception of the inherited society through its culture, and the patronage of the then governments. चलिए साइड बाय साइड लेकर के चलते हैं, बिल्कुल दोनों को। ब्रिटिश इंडिया, even the British China. China was also having same kind of things what the Indians were facing, the opium war and many things like that. China was also occupied by several foreign invaders. We too, the country India, we got independent. A student of history will tell you better. Chinese also got some sense of freedom, throwing those rulers of the original Chinese region or the occupant. But यहाँ से शुरू होती है परिवर्तन, आज़ादी के बाद का एटीट्यूड। चाइना की आज़ादी के बाद का एटीट्यूड चाइनीज़ मेडिसिन के लिए, आयुर्वेद के प्रति एटीट्यूड आयुर्वेदी इंडिपेंडेंस के बाद, भारत के स्वतंत्रता के बाद। इमोशनल होने पर शब्द गड़बड़ाने लगते हैं ना। तो चाइनीज़ मेडिसिन के प्रति चाइनीज़ सरकार, चाइनीज़ लोगों का क्या रुख था जब चीन स्वतंत्र हुआ और उसने अपना शासन, अपनी संप्रभुता, द सोवरेनिटी ऑफ द चाइनीज पीपल वाज एस्टेब्लिश्ड टू रूल द चाइना, then what was their attitude to their own system of medicine, that is the Chinese system of the medicine, and the attitude of the we Indians and the rulers of the India when they got freedom of the 15th August 1947. So this is the point which matters. This is the point which matters. The attitude. Yes, I'm serious about it. I mean it. और यही वो एकमात्र कारण है कि चाइनीज़ मेडिसिन आज वैश्विक मेडिसिन है और आयुर्वेद अभी संघर्ष कर रहा है इधर उधर से। वो तो धन्यवाद पिछले 9 वर्षों की सरकार का, स्पेसिफिकली सिंस 9 years of the 2 terms of the NDA government, I mean BJP government, and specifically by its leader
श्री नरेंद्र मोदी जी, even the first spell of the NDA by the BJP government, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी इतना ध्यान आयुर्वेद और इस संस्कृति की विरासत को बढ़ाने पर नहीं था। शायद वो मोर कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट थी। ये अपनी बहुमत की सरकार है तो इसका भी असर पड़ता है आपकी नीतियों और नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन और पालन में। आइए, स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस कहती थी कि 1920 और 1940 ऑल इंडिया कांग्रेस, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब फैक्ट बता रहा हूँ खाली, तो कांग्रेस कहती थी कि 1920 के पूना अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन 1920-40 के जो हर साल होते थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद इस देश की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद होगी। लेकिन हुआ क्या, इस पर अभी आज बोलने लगूंगा, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आपका आदेश होगा तो इस पर भी पूरी बात मैं करने का प्रयास करूंगा और आपके समक्ष आऊँगा और बताऊंगा कि कैसे 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 आयुर्वेद की अवनति आर्यावर्त में हुई और स्वतंत्र भारत में हुई, इंडिपेंडेंट इंडिया में हुई, और फिर क्या बूस्ट हुआ। इस पर भी एक सेशन, क्या इस पर 2-3 इस सीरीज़ हो सकती हैं इस टाइटल के अंतर्गत। जैसे कि हम डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन पर अभी हमने देखा पूरा मैटर, तो मुझे लगा कि ये तो 3 सेशन का है, इससे पहले तो इसके साथ न्याय हो ही नहीं सकता। और आप जो कि जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, उसको मैं पूरी तरह से समझा नहीं पाऊँगा। तो चलिए, अभी आज ये खंड 1 है, पार्ट 1 इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। अब चाइनीज़ मेडिसिन के इतिहास पर जाएंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि हमारा है। संहिताएं, फिर संहिताओं पर टिप्पणी, उनके यहाँ भी यही है, लेकिन वो समय बहुत बाद का है। और मुझे याद है कि मैंने एक जगह कहीं कहा था, अब उनका जो ग्रंथ आया है, जो कंपेंडियम ऑफ मटीरिया मेडिका, जो अंग्रेजी अनुवाद है, वो 17वीं सेंचुरी में है। वो जो लिखा गया वो 15वीं शताब्दी का है, और वो एक चाइनीज़ कैलेंडर भी चलता था। तो चाइनीज़ कैलेंडर से शायद बहुत कम अंतर है, लेकिन उस 1593 में वो पर्टिकुलरली वो बुक जो है रिकॉग्नाइज हुई, जिसके ऊपर की चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रहा है। 1593। अगर हम शास्त्र के विद्यार्थी, हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो भैषज कल्पना की पुस्तक आई अलग से, सारंगधर संहिता, वो बहुत बाद में आई, और इसलिए हमारा जो विकास हुआ फार्मास्यूटिकल डिवीज़न का, वो कम हुआ। अरे यहाँ देखिए ना, मैं तो समझता हूँ कि आज से मैं ये रीज़न देना बंद कर दूँ, लेकिन ये रीज़न मुझे देना पड़ेगा क्योंकि अभी ढेर सारे मुद्दे रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो उनकी बुक, जिसको कि उन्होंने बहुत प्रमोट किया, कंपेंडियम ऑफ मटीरिया मेडिका, got recognition of those days system of the rulers in the 1593, 16वीं शताब्दी। हम लोग भी सारंगधर संहिता 13वीं शताब्दी से लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए, इस पर फिर मैं अगले सेशन में बात करूंगा कि जो हमारी फिलॉसफी है, त्रिदोष, पंचमहाभूत, सप्तधातु, उनके यहाँ भी वो भी इसी तरीके से बात करते हैं। 5 एलिमेंट्स, 4 ह्यूमर्स, नाम उनका अलग अलग है, वो भी यही बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं। वो बहुत अच्छा एक राइटअप मुझे मिला जिसका मैंने पढ़ा, तो उन्होंने सीधे यही बात किया कि होल द बॉडी इज ऑन द मेरिडियन, मतलब स्रोतस हम लोगों के, और वो सब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चल रहे हैं। और जो नेचर का है, यथा लोके तथा पिंडे, जो ह्यूमन बॉडी है वो नेचर से बनी है, और नेचर की जो चीज़ है वो ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी की जो चीज़ भी ठीक होगी वो नेचर से ठीक होगी। यही तो है चाइनीज मेडिसिन का सिद्धांत, और यही तो है आयुर्वेद का सिद्धांत। सिद्धांततः दोनों एक ही दिखाई देते हैं। मैं तो इस चैनल पर यह भी कहने का साहस दुस्साहस करूँगा, और मैंने कहा भी था कि जब वेनसांग फाहियान आए और यहाँ से जब खच्चर भर भर करके ले गए ग्रंथों को,
नालंदा से और विश्वविद्यालयों से। तक्षशिला तो थोड़ा और नज़दीकी था उनके। और जब उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया तो आप राहुल संस्कृत्यायन को पढ़िए, उन्होंने जो कोई पूरी अपनी आज्ञा दी है कि कैसे कैसे चाइना में कौन कौन सी चीज़ें गई। मुझे थोड़ा इस पर और समय चाहिए और मैं उसका अध्ययन करके आपके मध्य आऊँगा, आपसे बात करूँगा, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट अच्छा लगा कि अभी तक तो हम बड़ा ऊपर ऊपर जानते थे कि हाँ TCM बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर हम इतना ही जानते थे कि 20-80 का रेशियो है, 80-20 का रेशियो है। मुझे और थोड़ा सा और मैं जानता था, 2-4 कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ा हूँ, लेकिन ये जानकारी तो बहुत ही उद्वेलित करने वाली है और चिंतन मनन करने वाली है। इट्स स्टिमुलेटिंग द थॉट कि वाई नॉट वी, वाई नॉट इंडिया, वाई नॉट आयुर्वेद। आइए, अब उन्होंने बहुत कम समय में विकास किया है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। उन्होंने मतलब चाइना ने, सब कुछ उनका हमारी आज़ादी के साल के 7 से ही चल रहा है। 1950 जब से हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, उनका भी सारा खेल 1950 से ही चल रहा है। इसलिए मुझे और चिंता हो रही है। मान लीजिए, चलिए पूरी पीछे का पूरा इतिहास छोड़ दीजिए, कीप ए साइड रख देते हैं अलग। श्वेन डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, सॉन्ग डायनेस्टी, और इधर सारी हमारी जो डायनेस्टीज़ हैं, गुप्त काल और मौर्य काल, और फिर खिलजी वंश, मुगल वंश, ये सारी डायनेस्टीज़, और उधर की सारी डायनेस्टीज़, और ब्रिटिश कॉलोनी और दैट कॉलोनी, सब एक तरफ करिए। खाली एक पैरामीटर ले लेते हैं 1950 का। भारत भी स्वतंत्र हुआ 1950 में, मतलब संविधान लागू हुआ। और चाइना में भी तो सारी चीज़ें जो TCM को TCM आज बना करके रखी हैं, वो सब तो 1950 से ही शुरू हुई हैं। और इस तथ्य को जो मैंने आज जाना आपकी डिमांड के ऊपर, आपने डिमांड की कि जरा इस पर बात की जाएगी अपने इस माध्यम पे, YouTube चैनल पर, तो लगा चलो भाई तैयारी करो, क्योंकि बिना तैयारी के तो कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने तैयारी करने की विधा में गया तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ और दुख हुआ कि अरे 1950 से ही तो TCM बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसके पहले भी तो वो ऐसे ही थी जैसे हम। और वो पूरे काल को छोड़ दीजिए, एक अलग रख दीजिए, एक चाइना गवर्नमेंट 1950 की और एक इंडिया गवर्नमेंट 1950 की, यहाँ से कंपैरिजन शुरू करिए। और अपनी श्रेष्ठता की भावना, जो मैं कह रहा हूँ कि नालंदा तक्षशिला से वहाँ गया और राहुल संस्कृत्यायन जी ने इस पर शोध किया है। और ऊपर जो हमारा ताज है, शोआरोपा आमची तिब्बतियन, उन्होंने से भी वहाँ से भी गया। तो क्या है, एक डेफिनेशन जो आती है चाइनीज़ मेडिसिन को, यही तो आती है कि इट इज़ ए सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग, folk beliefs depending on the herbal food, diet and exercises, what not, all these are the part of Ayurveda too. लेकिन हुआ क्या, एक सांस्कृतिक क्रांति हुई चाइना में। भारत में अभी वो नहीं हुई है। कई बार ये आंदोलन सांस्कृतिक यात्रा का भारत का उठता है, लेकिन विभिन्न कारणों से अपनी श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर पाता है। उठता है, डिमांड उठती है, बात उठती है, सब कुछ होता है। अब ये शायद एक वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और एक कम्युनिस्ट प्रोसेस का अंतर है कि क्या है, ये भी एक चिंतन मनन का विषय है। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट है, वहाँ नहीं है। वहाँ कैसे सरकार चलती है, जनता को कितने अधिकार हैं, लाल चौक का आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर के अभी नहीं जाना है। अभी मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूँ खाली TCM वर्सेस आयुर्वेद, TCM और TIM, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। तो जब इस पर आप सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने भी सब कुछ 1950 से ही शुरू किया। और जब चाइनीज़ कल्चरल एंड, उनके यहाँ ये दौर नहीं ऐसा था जैसे कि हाँ ये दौर उनके यहाँ भी आया था
जैसे कि हम भारत की सरकार आज़ाद हुए और एक आयुर्वेद को तिरस्कृत नज़रों से देखा और जितना आयुर्वेद को कम करते थे करते चले गए। वो तो 1970 में कहिए तो CCIM आई, और वो भी 2 लोग, वैद्य अनंत नारायण शर्मा जी उड़ीसा से, गुंजन से लोकसभा सांसद, और वैद्य शिव शर्मा जी राज्यसभा में मुंबई से। ये 2 लोगों का प्रयास है कि CCIM आई और पॉलिटिकल अप्रोच पर वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी का नाम लिया जाए, कुछ पॉलिटिकल अप्रोचेज में स्वर्गीय राजनारायण जी का नाम लिया जाए, प्रातः स्मरणीय, जिन्होंने की बराबर की बात की। स्वयं अगर BHU के संदर्भ में बात करूं तो श्री मुरली मनोहर जोशी जी, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री, जिन्होंने कि यहाँ पर BMS का कोर्स पुनः शुरू कराया, जो कि कई कारणों से बंद हो गया था। तो मैं खाली यहाँ पर एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि राजनीति का प्रभाव किसी की विकास पर या किसी के भी विनाश पर, राजनीति, इन्वर्टेड कॉमा में राजनीति, जी हाँ राजनीति मान ली, और वो वाली राजनीति नहीं जो कि अब डिपार्टमेंट्स में होती है, बड़ी वाली जो नीति निर्धारक वाली है ना। राजनीति तो हर घर परिवार में हो रही है, उसको भी किनारे लगाइए। और खाली इस मुद्दे पर बात करते हैं हम लोग कि राजनीति, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति ने आयुर्वेद को बदहाल किया। 1950 में चाइना में भी एक ग्रुप निकला जिसने कहा कि नहीं, दिस चाइनीज मेडिसिन आर अनसाइंटिफिक, इर्रेशनल। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। जिस समय भारत के लोगों को यह समझाया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, अंग्रेज भारतीयों के द्वारा, कि आयुर्वेद एक बेकार सिस्टम है 1947 से लेकर के 1970 तक, इसके लिए इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, उसी समय चाइना में भी कुछ लोग, चीन में भी कुछ लोग चीनियों को समझा रहे थे कि ये चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेकार की चीज़ है, अनसाइंटिफिक है, इसके ऊपर हाथ रखने की या इसको विकसित कराने की आवश्यकता नहीं है। सेम टाइम दोनों जगहों पे, माइंड इट, दोनों जगहों पर सेम एक ही समय पर। लेकिन भारत में ये प्रिवेल कर गया, इसको मान्यता मिल गई इस थॉट को कि नहीं, आयुर्वेद एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं है मेडिसिन का, सूडो साइंस। अरे विकिपीडिया चाइनीज़ वालों को भी सूडो साइंस लिख रहा है भाई, दिस इज़ द फ्रॉड ऑफ सूडो साइंस। हम लोग लड़ते फिरते हैं विकिपीडिया से कि उसने आयुर्वेद को कैसे सूडो साइंस लिख दिया है। अरे विकिपीडिया ने तो चाइनीज़ मेडिसिन के भी अपने पेज पर लिखा पड़ा है सूडो साइंस, फ्रॉड ऑफ द सूडो साइंस। लेकिन क्या उससे वो घट गई चाइनीज़ की मान्यता? हम तो केस तक कर लिया है, हम लोगों IMA पर केस कर दिया हम लोगों ने, कैसे सूडो साइंस कह सकते हैं, कैसे। मानने का मतलब वही है कि जो सचिन तेंदुलकर ने कहा था एक बार अपने क्रिटिक्स को कि उनको आलोचना करने दीजिए, उनका उत्तर मेरा बैठ देगा। मैंने कभी नहीं सुना, या शायद मैं नहीं जानता हूँ कि चाइनीज़ की तरफ से विकिपीडिया को रिप्रेजेंटेशन गया है कि नहीं भाई हमको सूडो साइंस मत कहो। लेकिन हमने तो आसमान सिर पर उठा लिया कि हमको सूडो साइंस कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं तो कहो, लेकिन देखो किस तरह से आगे बढ़े और हम क्या। कहीं ना कहीं वो वाली कहावत हमको याद आ रही है, अधजल गगरी छलकते जाए। खैर ये कि प्रोसेस है, चल रहा है आयुर्वेदज्ञों का। लेकिन जब वहाँ पर ग्रेट पॉलिटिकल, और इसको आप एक वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है जिसका कि मैंने अर्थ देखा, द ग्रेट प्रोलेक्टेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, द ग्रेट प्रोलेक्टेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसमें कि मुख्य रूप से ये बात आई कि नहीं, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है हमें बदलनी होगी। और जब चाइना में ये कहा जा रहा था कि नहीं ये सब बेकार है और चाइनीज़ मेडिसिन बेकार है, उस समय फिर से ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, आप आयुर्वेदिस्ट सुन रहे हो तो, वहाँ चाइनीज़ मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर्स थे वो संगठित हुए। The practitioners and the healers of the Chinese medicine organized and convinced the government at that time in the 1950, okay, we are removing all that which is unscientific, which is irrational, which is not proven. ध्यान दीजिएगा, वहाँ चाइनीज़ मेडिसिन के लोगों ने ही कहा कि हमारे लिटरेचर में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जो आज के संदर्भ में प्रामाणिक नहीं हैं। पूरा लेख आप मेरे मेल पर भेज, अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा,
और अभी टेक्निकली थोड़ा सा और साउंड हो जाऊं तो शायद मैं दिखा भी सकता हूं। अभी तो खाली बोल रहा हूं, अभी दिखा पाने में अक्षम हो रहा हूं क्योंकि ढेर सारे कुछ तकनीकी कारण है। देखता हूं भविष्य में क्या कर पाता हूं। ये चीज़ वहाँ भी कही गई तो चाइनीज़ मेडिसिन के ही हीलर्स गए गवर्नमेंट के पास, चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं और हमें मौका दीजिए, हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमारे में हम पिछले इतने हज़ारों साल से चाइना में हैं और हम चाइनीज़ के मेडिसिन को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। सरकार ने उनकी बात मान ली और उन्होंने अपने लिटरेचर की बड़ी अच्छी कटाई छटाई की। उन्होंने एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी को छोड़ा नहीं, एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी को रखा नेचर के, लेकिन बाकी जितनी फोक इरेशनल चीज़ें थी उनको उन्होंने रेड ऑफ किया। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था अपनी पीजी क्लासेस के लिए, आज के 20 साल पहले पढ़े थे, अभी भी याद है, पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन वो बात मुझे अभी भी याद है कि चाइनीज़ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ने सारे अपने डोजेस चेंज कर दिए हैं। जो उनके लिटरेचर में था 500 साल 1000 साल पहले, वो डोज अब नहीं है वहाँ पे। मैंने वो रस सिंदूर के बारे में पढ़ा था, वो भी रस सिंदूर बनाते हैं। अरे बहुत काम किया है उन लोगों ने। फिर मैं डिबेट नहीं होना चाहता हूँ, 3 सीरीज़ है अभी इस पर भी बाद में ले लूँगा, मेटेरिया मेडिका पर। उन्होंने लेकिन बात छिड़ गई तो छिड़ गई, दूर तक जाएगी भाई। तो उन्होंने मना सिला हड़ताल सब पे काम करके रखा है अमेरिकन लेबोरेटरीज से बैक। मैं सोचता था कि ये कैसे ही लोग कर रहे हैं, वहाँ पेपर कैसे पब्लिश हो रहा है। मुझे उत्तर मिल गया है कि वहाँ कैसे इन लोगों में, क्योंकि ये यूएस में मान्यता प्राप्त है, मालूम है आपको। और कब से? अरे भाई सीधे 1976 से कैलिफोर्निया ने इनको पहली मान्यता दी। और आज यूएस स्टेट्स में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं आउट ऑफ देयर 49। कभी कभी मेमोरी काम नहीं करती है। तो यूएस में कितने स्टेट्स हैं और कितने राज्य हैं? 49 के 50 मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन जो भी हैं वो उसमें सिर्फ 6 ऐसे हैं जिन्होंने अभी सिर्फ 6 जिन्होंने टीसीएम को मान्यता नहीं दी है। बाकी सबने टीसीएम को एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन मान्यता दी है और आयुर्वेद को आज तक यूएस के एक भी स्टेट ने मान्यता नहीं दी है। तो ये जो रीजन्स हैं कि जो 1950 में दोनों जगहों पर शुरू हुए, और वो जो चाइनीज़ प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट को कन्विंस किया। और गवर्नमेंट इसलिए कन्विंस की क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट कल्चरल पैट्रोनाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी। और उन्होंने चीनी संस्कृति की रक्षा में, चीनी ज्ञान की अभिरक्षा में, रक्षा और अभिरक्षा में, प्रतिरक्षा में उन्होंने ये सारे कार्यक्रम बनाए, जहाँ पर कि 20% 80% इंटीग्रेशन का सिस्टम लागू कर दिया, कंपल्सरीली इंटीग्रेशन किया। अभी आज तक हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ मालवीय जी महाराज ने उनसे पहले भी शुरू कर दिया था। 1904 में ही उन्होंने इंटीग्रेशन की बात की थी भारत में। तो हमारे यहाँ से मतलब भारत, काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, भारत। क्योंकि मालवीय जी नेशनल लीडर, वो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को देखते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकारें क्यों 1947 के बाद इस पर नहीं ध्यान दी, वो उसका जवाबदेही पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। हाँ बिल्कुल, और उनके तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री लोगों को है। महाराज पंडित मदन मोहन, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नहीं है। उन्होंने तो अपने कॉन्सेप्ट पेपर में लिख ही दिया था इंटीग्रेशन। चलिए, तो वो चाइनीज़ ने इंटीग्रेशन किया और वो 1950 से काम शुरू किया। उन लोगों ने अपनी सरकार से कहा कि हमको मौका दीजिए, और 10 साल में उन्होंने इतना काम किया और इतना सपोर्ट उनको 10 साल कि 1960 में चाइना गवर्नमेंट ने उनको पैट्रोनाइज कर लिया और प्रोपोगेशन में लग गई। और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं 10 साल में। हमारे लोगों को भी तो 9 साल हो गए हैं स्पेशल पैट्रोनाइज मिले हुए। 2014 के भाजपा के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 25-26 पर सब तो लिखा हुआ तो है। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं, उन्होंने पैसा वगैरह सब कुछ बहुत दिया है। कमी कहाँ है, इसको क्यों बार बार कहा जाए। लेकिन सोचिए कमी कहाँ है। आयुर्जीनोमिक्स की सारी बातें हुई सब। चलिए, तो मैं यहाँ पर तथ्य रख रहा हूँ कि 1950 से उनको चाइना गवर्नमेंट ने पेट्रोनाइज करना शुरू किया। वो भी उनको बंद करने जा रहे थे, जैसे हमारे यहाँ हो गया। लेकिन हमारे यहाँ तो 2014 में जीवन मिला, या 1993 में पीवी नरसिंहा राव साहब के प्रधानमंत्रित्व काल में माननीय पीवी नरसिंहा प्रधानमंत्री जी ने एक डिपार्टमेंट दे दिया। बड़ा लंबा इतिहास है, उस पर फिर कभी सेशन करेंगे, अलग से करेंगे, पक्का करेंगे।
चीज़ों को, जनरेशन को जानना जरूरी है। तथ्यों को, अवनति के तथ्यों या प्रगति के तथ्यों को आयुर्वेदिकों की पीढ़ी को जानना जरूरी है, जिससे कि वो इसके प्रति सजग रहें और लोगों की मूल भावना को समझें कि उस नीति का मूल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस परिप्रेक्ष्य में वो नीति बनाई जा रही है। ये जरूरी है समझना, तो हम लोग समझेंगे इसको। चलिए, तो चीन 1960 में प्रगति के रास्ते पर चाइनीज मेडिसिन चल चुकी थी। आपको पता है यूएन से चाइना ने 1972 में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो कि यूनेस्को वाली है वो शुरू की। भाई वीटो पावर तो चाइना के पास सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ ही है, लेकिन इस तरफ भी चाइना की सरकार ध्यान देती रही और 1972 में उन्होंने 1972 में एक यूएन से स्पेशल कोलैबोरेशन किया फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ चाइनीज मेडिसिन, जैसे अभी हम लोगों ने किया योगा के लिए। इंटरनेशनल योगा डे के रूप में हम लोग सारे चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हमारा भारत देश कर रहा है। अभी उन्होंने मनाया IVD। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो इस बार वहीं थे, वो यूएन पे ही थे, तो इसकी क्रेडिट तो जाती ही है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इन द सेम वे यूएन के थ्रू चाइनीज मेडिसिन का प्रोपोगेशन हुआ है। और फिर जो अगली सीरीज आएगी ना, उसमें मैं WHO के रोल पे बात करूंगा कि WHO ने चाइनीज़ को कैसे बढ़ाया, फिर उनके सरकारों ने कैसे बढ़ाया, फिर पब्लिक ने कैसे पसंद किया, ग्लोबल पब्लिक ने इनको कैसे पसंद किया। इस पर एक सीरीज चलेगी मित्रों। उस मित्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता नहीं, वो ईमेल आईडी से आया था, और ईमेल आईडी से नाम पहचानना मुश्किल है। ईमेल आईडी से मुझे एक सजेशन मिला था, नहीं तो मैं आपका नाम आज सादर लेता कि आपने मुझे इतना सारा पढ़ने का अवसर दे दिया। ये आपकी धन्यवाद कि आपने मुझसे कहा कि एक प्रमुखता से इन कारणों पर बात करें, तो इनकी गहराई से इन कारणों पर बात करेंगे। 4-5 पन्ने का डॉक्यूमेंट तो हम भी पढ़े थे, आज 20 साल से पढ़े। हाँ, TCM बहुत अच्छी है। और हमारे सर डॉक्टर DC कटोच सर कहते थे कि आनंद में तो 13 बार उनका कहना था कि वो रिटायरमेंट के बाद वो बोल रहे थे कि मैं तो 13 बार चाइना गया हूँ। गरीब बाप। एक बार यहाँ भी प्रोफेसर साहू जब डीन थे तो वो भी चाइना जाने की बात कर रहे थे कि डेलीगेशन पर उसको कहते कि तुम हमारे साथ चलोगे, तो न नौमन तेल हुआ, न राधा नाची। वो प्रोजेक्ट का पता नहीं क्या हुआ। सब प्रोफेसर साहू सर की डीनशिप भी पूरी हो गई। वह होता रहता है, सरकारों में ऐसी चीज़ें चलती हैं, सरक के ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन चलिए, कुछ सरकारें अलग होती हैं, दौड़ा देती हैं। जैसे हाईवे नितिन गडकरी साहब दौड़ा रहे हैं, एक रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। क्या काम करने का तरीका है। रोज़ शाम को इवैल्यूएशन करते हैं पूरे भारत भर से कि कितने किलोमीटर बनी, और सबका तिथि डिसाइड है कि आज इस रीजन से उठाएंगे, आज उस रीजन से उठाएंगे। सारे इंजीनियर लोग खड़े हैं, अपने पैरों पर काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब हाईवेज बन रहे हैं। यही काम किया था चाइना की सरकार ने 1950 से 1960 के बीच में। पूरे अपने सिस्टम को, पूरे अपने सेटअप को, साइंस के सेटअप को लगा दिया कि TCM के ऊपर काम करो। और वो जो एक आदेश आया और जो TCM के ऊपर काम हुआ, आज TCM को TCM बना दिया वर्ल्ड लेवल पर। फिर उसमें WHO की भी भूमिका बहुत अच्छी रही। लेकिन अब ये सारी बातें अगले सेशन में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मान्यता है इंटरनेशनल रेगुलेशन में TCM की, वो सारे कॉन्टिनेंट्स में है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अरे सबसे इम्पोर्टेंट तो अंकल सैम माने जाते हैं ना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई थोड़ा मास्टरों को छूट होती है अपनी क्लास को रोचक बनाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करने की। लेकिन नहीं लगाना है मुझे। लेकिन इतना ज़रूर कहना है कि लेकिन लगाए बगैर, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कहना है कि आज अगर चाइना की सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 6 राज्य उसको नहीं मान्यता दिए हैं, और उनको मान्यता देने की परंपरा कैलिफोर्निया फर्स्ट था, उसने 1976 में शुरू कर दी थी। एक्यूप्रेशर बोर्ड बना करके। और ये जानते हैं आप, हमको एक दिमाग में आई थी बात, करे आयुर्वेद के साथ तो इतना सारा लग गया है, इंडियन सिस्टम मेडिसिन में यूनानी भी है, सिद्धा भी है, और स्वागरिप्पा भी है, ये सब विकास नहीं होने दे रहे हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं। वहाँ भी मैंने अभी पढ़ा, चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी बहुत सारे सब डिवीज़न हैं,
टुन्नी है, क्वांगसी है, एक्यूप्रेशर है, ढेर सारे उनके डिवीज़न है, अदर थेरेपी करके एक पूरा कॉलम ही है। तो मित्रों, ये हमारे कम से कम 3 सेक्शन की ये सीरीज़ होगी कि हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग संविधान का अपना प्रियम्बलम क्यों पीछे हुए चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, जबकि हमारी स्वतंत्रता और हमारा साथ 1950 से ही शुरू होता है, जब यहाँ पर एक सरकार थी जो आयुर्वेद को कुछ नहीं समझती थी, वहाँ भी एक सरकार थी जो चाइनीज़ मेडिसिन को कुछ नहीं समझती थी, लेकिन वहाँ के चाइनीज़ मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स ने अपनी सरकार को प्रभाव में लिया, कहाँ से कहाँ ले गए, और हम 1950 के बाद आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स अपनी सरकारों को शायद प्रभावित नहीं कर पाए, और जब किए हैं तो शायद बहुत देर हो चुकी है। विश्व में हमको अपना स्थान बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और ये रीजंस हैं कि हमें अभी बहुत काम करना है, हमें अभी बहुत काम करना है। वी हैव टू वर्क डाई हार्ड, देन ओनली वी मे बी एबल टू compete TCM at the global scenario. And that deed, and that the thought process which the Chinese have, that is the for respect to their cultural heritage. We Indians lack here. हम यहीं कमी खाए, और यही एक मुख्य रीज़न था कि हम आयुर्वेद को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए। ढेर सारी लोगों के नाम लेने का मन कर रहा है, लेकिन ज़रूर लूँगा, सेकंड सीरीज़ में ज़रूर सुनिएगा। और उस समय किस किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ कहाँ से आयुर्वेद को लोगों ने विकसित नहीं होने दिया, और अगर दिया भी तो आयुर्वेद कहाँ मात खा गया, सब चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि वक्त है इन चीज़ों को एनालाइज करने का। एंड वी विल एनालाइज, देन ओनली वी विल बी सक्सीड फॉर ए प्रोग्रेसिव फ्यूचर। इतिहास की गलतियों से सबक लेना चाहिए, एंड दिस इज़ द हाई टाइम कि हम आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए काम करें। धन्यवाद, आभार, साधुवाद, नमस्ते। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। थैंक यू।